کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو بہت کلوز فرینڈ ہوتے ہیں وہ کچھ سالوں بعد آپ کو لگتا ہے یہ لڑی فیک ہے. جیسے میری بچپن کی جو فرینڈ تھی جو میں اتنی اس سے کلوز تھی, ٹائم گزرا, اس کے بعد مجھے لگا کہ اگر کوئی مجھے ذلیل کرتا ہے نا تو دیٹس ہر. یہ ایکچولی شی از بیڈ فار می. اس کی انرجیز آپ کو برباد کری تھی, آپ کو پتہ نہیں چلتا. مطلب مجھے نوٹ ہوا میں کہ سب مجھ سے اتنی عزت سے بات کرتے ہیں, یہ مجھ سے کس طرح بات کرتی ہے. مجھے بچوں نے بتایا کہ ماما شی از بلینگ یو. اور اس حد تک ہوا تھا کہ دیر واز اے ٹائم کہ میں دل نہیں کر رہا کہیں جانا ہے ریسٹورینٹ یہ وہ, تو میں اسلام آباد آئی. اس نے کہا کٹی رکھی اوپر چلو میرے ساتھ. میں نے کہا میں نہیں جانا, میں لڑکیوں کو نہیں جانتی, میں جا کے ایسے کٹی میں بیٹھ جاؤں. تو کہتی ہے نو بڈی کیئرز یور نادیہ خان, اوکے, کسی کو کچھ نہیں ہوگا. تو میں یہ نا کہ سب تصویریں نہیں کھنچائیں گے تو کیا پرابلم ہو جائے گی. کہتی نو بڈی کیئرز, نو بڈی گیوز اے ڈیم. اور یہ کتنی پرانی ویسے اور بچپن والی 9th 10th والی. پھر میں نے نوٹ کیا کہ یہ 2-3 دفعہ اس نے کہا اچھا یار تم نادیہ خان ہو, ہمیں کو پرواہ نہیں. اور مجھے وہ ہرٹ کرتی تھی. پھر 2-3-4 دفعہ یہ جملہ کبھی دوست سے ہاں مطلب برتھ ڈے پہ ویسے کہا, میں نے کہا تم نے مجھے فیس بک پہ وش کیا, یو شوڈ ہیو کالڈ می. کہتی جو ہر بار تمہیں ہوتا ہے نا کہ تمہیں کو پرنسس ٹریٹمنٹ ملے, آئی کانٹ ڈو دیٹ. اے دور ہو جاؤ اس سے ناری, تم بات نہیں کرو اس سے, ہٹ جاؤ بس. مجھے علیزہ نے کہا ماما بس بہت بس, یہ شی از اے بلی. میں کہا ہے میں تو کبھی کسی سے بلی نہیں ہوئی. کہتی اب آپ ہو رہی ہیں. اور اس کو مجھے لگا کہ یار اس کو تو مجھ سے کوئی واقعی کوئی پرابلم ہے, جو لوگ جیلسی کہتے ہیں کیا. بہر آئی جسٹ سیڈ میں کہ دس ٹو مچ. باقی یہاں پہ آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ میں اس سے دور کھنچ گئی. ایموشنل انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے. اور اب میں کبھی کچھ کبھی ملتی ہوں, ہائی ہاؤ آر یو, اینڈ دین آئی جسٹ واک. میں کہتی ہوں نہیں, اس نے مجھے, اگر کسی نے آپ جس فرینڈ کے ساتھ کمتر فیل کریں, آپ کو برا فیل ہو, دیٹ از ٹاکسک فرینڈ, چاہے وہ بچپن کی کیوں نہ, لوگ بدل جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی آپ پہچانیں آپ کا دوست کون ہے. اگر آپ کا دوست آپ کو مسلسل آپ ہی میں سے نقص نکال رہا ہے, آپ کو کمپلیکسز میں ڈال رہا ہے, اور آپ کے بارے میں آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہا. میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے not very long ago. ہاں تو اچھا سمجھدار میں بلی ہو جاتی تھی. یہ چیزیں تھیں. آپ embarrassed feel کرتی تھی, میں نے کچھ غلط کہا, میں نے کیا کہا. اچھا جی مجھے بتائیں فیک فرینڈ کو آپ کیسے جان چھڑائیں گے اب سے؟ ویسے تو آج کل جو دور ہے زیادہ تر لوگ مطلب کے لیے ہی ملتے ہیں, اور جو ہماری فیلڈ ہے اس میں بھی سب کام ہی ہے تو ملتے ہیں, ادروائز نہیں ملتے. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ میں تو زیادہ تر یہ کرتا ہوں کہ فون نہیں اٹھا پاتا. ایک تو اٹھا بھی نہیں پاتا, پھر اٹھاتا بھی نہیں ہوں. شہر میں بھی آئے ہوئے ہوں, لاہور سے آئے ہوئے, اسلام آباد سے آئے ہوئے. میں نے 8-9 سال لاہور مارکیٹ میں کام کیا ہے. وہاں کے زیادہ تر دوست پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی صرف فون نہیں اٹھاتے, فون نہیں اٹھا رہا. میں آپ پہنچے میں آ رہا ہوں, کچھ چیزیں فواد میں ہی سیکھ لی ہے نا, آپ پہنچے میں آ رہا ہوں, سمجھ کے جانتے ہیں کچھ چیزیں فواد میں سے بھی سیکھ لی, بس آپ پہنچے میں آ رہا ہوں. اتنے میٹھے انداز میں. فواد آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ یار آنیسٹلی میں بتاؤں کہ میں وہ نادیہ نے اور جو بات کی اور ندا نے جو بات کی نا, میں سچی بات بتاؤں, میں جان نہیں چھڑا سکتا, چاہے فیک ہو چاہے کوئی بھی ہو. موجودہ دور میں یار دوست جس کے ساتھ لگ جائے نا تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے, ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو میں کم از کم میری جو طبیعت ایسی ہے کہ میں اگر مجھے پتہ بھی ہے کہ یار یہ فیک ہے, یہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں یار, جان نہیں چھوڑا سکتا. لیکن ویسے یہ پتہ یہاں پہ بندہ, اور پھر نا یہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں یہاں پہ آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. نو نہیں کہہ سکتے, لیکن عروسہ یہاں پہ آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. بہت سارے آپ کے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ ان کو بچپن سے نادی بات کرتے ہیں نا, میرے بچپن کا دوست, ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ان سے بچھڑیں گے تو مر جائیں گے, لیکن وہ دوست جب آپ کے ساتھ رہتا ہے تو وہ لٹرلی آپ کو ایز اے ہیومن مار دیتا ہے. پھر وہاں پہ جو آپ کی ایموشنل انویسٹمنٹ ڈوبتی ہے نا, پیسے میں کہتی ہوں آپ کو بینک بیلنس تباہ ہو جاتا ہے. اب اتنا دکھ نہیں ہوتا بچپن میں, کیونکہ حمزہ از ناؤ 5 years old ماشاءاللہ, اب نئے دوست بنانے کی ان لوگ کی ہے ایج ہمارے بچوں کی, تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ وہ دوست کہاں سے نکل کر آئیں گے, کیسے آئیں گے, جو بچپن میں اچھے مل جائیں. بہت پیارے ماشاءاللہ, ہمارے جلدی چلے گیا. اچھا جی, جو دوست ہوتے ہیں نا, میرے ساتھ جو یہاں پہ دوست موجود ہیں جوڑی, تو یہ بھی قریب کراچی میں رہتی ہے, کراچی کے ہیں, یہ لاہور کے, لیکن یہ کراچی میں رہتے تو ذرا دور نہیں ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ رہتی ہیں. بہت دور ہے, بہت ہے. ہمارے درمیان صرف 2 چیک پوسٹ ہیں, 2 چیک پوسٹ اور کچھ بھی نہیں, ورنہ مجھے کی بھی شاید آ جائے. میرے جو یہ دوست ہیں نا ندا, ان کے اور میرے درمیان پہلے 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی, میں لاہور ہوتی تھی. اس کے بعد جب میں کراچی آئی تو 1.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی, اور میں ملنے جاتی تھی
जब ये अमेरिका मूव कर थी तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मैं वीकेंड पे पहुंच गई थी उनको सी ऑफ करने के लिए। That's so true. और ये जहाँ जहाँ जा रही थी मैं कहती मैं आपके साथ ही जाऊंगी, साथ शॉपिंग, साथ shopping। ये लोगों को सी ऑफ करने के लिए जा रही, मैं उसमें साथ रेलू कट्टा बन के, क्योंकि मैं इतनी मुझे लग रहा था कि भाई एक तो वाकई दूर जा रही हैं, ठीक है, मतलब अमेरिका, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 2 महीने बाद मुंह उठा के चले जाएं, वीकेंड पे ये नहीं पॉसिबल। कराची से तो आप दुबई चले जाते हैं आराम से, वीकेंड पे मसला भी नहीं होता, लेकिन भाई मैं इतनी अपसेट इनके अमेरिका जाने के ऑनर्ड ऑनेस्टली इन मदीहा मिलने आई, और हमेशा मदीहा मेक्स एन एफर्ट। मैं एफर्ट करने में पता नहीं लैक कर जाती हूँ, थोड़ी ढीली हूँ, थोड़ी सुस्त हूँ अमेरिका जाके, और मैं मासी बन चुकी हूँ तो मुझे तो अब बहुत बातें सुननी पड़ती। मेरी एक इस वक्त दोस्त नाराज भी है इस्लामाबाद में, इज़ा, शी इज़ फ्रॉम दुबई। हाँ, कहते हैं एफर्ट नहीं करती, तो मैं मजबूर हूँ भाई अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाए। क्या नाम है उनका? इज़ा। इज़ा 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 मान जाओ इज़ा। इज़ा मुझे यकीन माने, मुझे इनका पता है, बच्चों ने इनको पागल कर दिया है। मेरा खुद बच्चा ना, मुझे पता है नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, किसी जोगे आपको नहीं छोड़ते। मुझे टाइम का पता नहीं चलता। मैंने जिंदगी में कभी लोगों की बर्थडेज मिस नहीं की थी, मैं बर्थडेज मिस कर देती हूं। ऑनेस्टली आई टेंड टू फॉरगेट नाउ। तो मैंने कही टेढ़ा पता नहीं क्या मेरे दिमाग का कर दिया इसने। कुछ हफ्ते महीने गुजर जाते ना, फिर मदीहा की मेरे पास बड़ा सा चीखता हुआ एक वॉइस नोट आता है, कहाँ है आप? मैं यही हूँ यार, लेकिन काम बहुत है। लेकिन भाई फिर भी जब भी बस मिलते हैं ना, तो हाँ मिलते तो मेरे पास इतना सामान होता है इनके साथ शेयर करने के लिए। वो मेरी कैसे शुरू होती। अच्छा, एक बड़ा फिर राज ये भी होता है कि आपकी अगर फैमिली की भी अच्छी बॉन्डिंग हो। मेरे हस्बैंड की भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ही इज आल्सो अ फ्रेंड। हाँ, तो फैसल की भी अच्छी फ्रेंड। अच्छा जी, मैं जरा एक मेरे पास एक और दोस्त है, उससे भी जान छुड़ानी है। ये बड़ा कभी कभी ये मैं हुई थी इनके साथ ये मैं इनके साथ हुई थी जब मैं जा रही थी अमेरिका। ये इससे मुझे कुछ और याद आ रहा है उसको आप कटा रही हो। जी जी एक होता है चिपकू दोस्त, जिसको आपने ना कभी आपका दिल कर रहा था, नहीं मूड होता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि चलो भी कट जाओ, लेकिन आपने उसको कटाना है ऐसे तरीके से कि आपका चिपकू दोस्त प्यार करते हैं आपको, लेकिन बुरा ना माने। फवाद अगले ये फवाद कहते मैं बराबर फवाद समझो ये चिपकू दोस्त है, इसको कटाना है, तो मशवरा अच्छा प्यारा से दे। क्या मशवरा होगा यार? चिपकू दोस्त को कैसे कटाएंगे यार? हाँ तो आप बताएं ना, मशवरा दें हमें लोगों को। वही मैं सोच रहा हूँ। जैसे ये मुझे लगता है ये खुद उनके साथ पूरा दिन ही गुजार लेंगे। चिपक जाओगे ना नहीं होती। सही कह रही है यार। नहीं, बहुत मुश्किल है यार मेरे लिए मदिया, बहुत मुश्किल है। नहीं करते, कर्टसी में बहुत टाइम देना पड़ता है। मदिया इतने शरीफ गेस्ट बुलाए हुए आपने आज घर चले जाए तो वो वहाँ भी अच्छा श्री के मैं घर आ रहा हूँ, जो मर्जी टोपी करा दे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जो मर्जी गोरी करा दे। अच्छा, एक आपको टोपी बाज दोस्त भी होता है, वो जैसे अरूसा टोपी कराती है, मैं पहुँच रही हूँ अरूसा रात को पहुँच रही हूँ, बस ये ड्रेस थोड़ा लेट हुई थी, थोड़ा सा हमजा को सुला के फिर सारी रात पर कोई टेंशन नहीं। अब कहती सारी रात आके 5 गाने लगा के डांस करके चली जाती है। 6-8 दिन बाद किसी रैंडम बात पे मैं मैसेज कर दूंगी, वो भी रैंडम बात पे जवाब दे देगी, कोई शिकायत नहीं। द बेस्ट पार्ट है कोई शिकायत नहीं। यही दोस्ती है मतलब। ये है। अच्छा, चिपकू दोस्त को हटाने का या उसे छुटकारा पाने का क्या मशवरा है? चिपकू दोस्त एक्चुअली अब सबको ही पता चल गया कि टाइम नहीं मैनेज हो पाता, और कराची में जो लोग रहते हैं उनको अपनी रोजी रोटी पूरा करने में इतने मगन होते हैं, और ये शहर आपको तो मौका ही नहीं देता कि कुछ करे। तो वो चिपकू दोस्त शायद मैं थी एक खुद ही, मेरे पास भी टाइम नहीं, अब तो कोई चिपकू आसपास बेचारे रह ही नहीं पाए हैं। लेकिन जो अगर कोई मुझे मिल जाए तो आई थिंक आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली कि कोई है कि जरा टाइम वो हो रहा है, सब बड़े हो रहे हैं ना आसपास के लोग भी बड़े हो रहे हैं। शो के बाद प्लीज पहुंचो यार, बहुत लोनलीनेस। नादिया बाकी सब यहाँ इतने बिजी हैं कि कोई चिपकता है सच नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो। क्या कहती हूँ? मैं खुद मसरूफ़ हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ आई एम ट्रैवलिंग और समथिंग, ये वो मैं नहीं फिर ज़्यादा मिलती। जब नहीं मिलना, अब मुझे लगता है कि आई रीच दैट पॉइंट इन लाइफ व्हेन आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं मिलना फिर करेंगे कुछ और, फिर जब मिलती तो 2 घंटे बातें भी कर लेती है पगली। मिली तो गई, बेटा किसका बहुत 2 घंटे से और वो यही कहती है अच्छा मैं बाहर से दे जाऊंगी ना, अच्छा मैंने कुछ देना है, ये कहती हैं अच्छा मैं देना है, और बारों बार ही भी 2 घंटे गुजर जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आती है। ये वेरी पाकिस्तानी थिंग एक्चुअली। ये क्या बातें होंगी? वैसे हम बैठे होंगे बातें करेंगे, लेकिन जैसे गाड़ी तक जाएंगे तो वहाँ पे हम आधा घंटा बातें करते हैं। वाई? हाँ नहीं, हम बल्कि एक दफा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो एक फैमिली थी, उन्होंने साथ खाना खाया, उसके बाद वो दरवाजे पे से मैंने कहा डेफिनेटली पाकिस्तानी फैमिली है तो वो थे इवेंचुअली। तो हमारा होता है आई थिंक इतनी बातों का खजाना होता है, तो 2-2 कदम जल्दी उस टाइम पे ज़्यादा याद आता है। चिपकू दोस्त से आप कैसे जान छुड़ाती है? मैं चिपक जाऊंगी थोड़ी देर वो कह के भाई मैं नहीं पहुंच रहा, तुम भी जाओ। वो तो खुश हो जाएगा ना फिर। अच्छा जी,
हाय अल्लाह ऐसा दोस्त किसी को ना दे। पर निदा अगर ऐसा इस दोस्त से जान कैसे छुड़ाएंगी, कन्फ्रंट करेंगी? नहीं, आई वॉन्ट, बट ऑफ कोर्स आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा है, तो कोई झूठ बोल रहा है, मैं तो कहती हूँ उसकी बात रख लेती हूँ, तो इट्स ओके, लेट इट गो, मूव ऑन। आप नादिया? भाई मैं सुनती हूँ, बिलीव करती हूँ कि जब लगता है कि इससे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि हमारी एक आध फ्रेंड है ऐसी, बस मैं भी ब्रेकअप कर रही हूँ, बस ये बंदा बड़ा टॉक्सिक, मैं तो गलत कर रही हूँ, नहीं मैं अब तो तुम देखना बस जून है आखिरी, और फिर खुद नहीं मुझे बताएगी कहीं से खबर मिल रही है कि नहीं अभी भी उनके साथ है या कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, फिर दुख होता है, फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, फिर डिस्टेंस आ जाता है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट कि आप झूठ बोल रहे हैं, और फिर जब रोना है तो फिर यार अब क्यों। नादिया, ये तो चलिए आपका अपना रिलेशनशिप हो गया, लेकिन झूठ में ये भी जो बहुत सारे दोस्त आपसे अपने बारे में झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी गप्पे आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ भी बोल रहे होते हैं, तो वो भी तो दोस्त है ना? दोस्त नहीं है। हाँ, वो मैं बात नहीं करती। हाँ, वो कैसे कटाती है उनको आप अरूसा? वो बस नहीं मैं we can't. ओके मैं कहती हूँ अच्छा ओह रियली वेरी नाइस। I just very smartly ask questions कि उसको खुद ही जवाब नहीं आ रहा होता कि वो झूठ को फिर आगे मजीद कैसे झूठ कर सकते। तो यानी कि कन्फ्रंट करती है। I do. झूठे को घर तक पहुंचाना चाहिए। या तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट बिल्कुल I'll just ask directly, बिल्कुल नॉर्मल, कोई ये नहीं कि यूं करके ड्रामों में करते हैं हम लोग, सिर्फ नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट, ये है ये नहीं है या क्या है व्हाट्सअप। या तो फिर अगर बहुत ज्यादा झूठ है तो फिर सबसे जो टॉर्चरस हथियार हो सकता है किसी के लिए भी, दैट इज साइलेंस। खामोशी आप इख्तियार करें, उसमें सब कुछ आप कह देते हैं। आप झूठा दोस्त से मुराद यानी जो झूठ बोलता है, आपसे झूठ बोलता है, यानी आपके बारे में, आपके बारे में, वैसे जो झूठ बोलता है, झूठा बंदा तो है ही झूठा ना। हाँ, नहीं तो आप फिर वो खामोशी से उससे जो आपसे उधार ले लेगा, झूठ बोलेगा मैं भी दे दूंगा, नहीं देता कभी, और वो तो मेरे हालात बड़े माली हालात खराब है तो आपके उधार के पैसों में कि कुछ और करके ऐसे अपने गुर्बत के किस्से सुनाए पहले से, और आप और उधार दे देते। पता है सबसे खौफनाक दोस्त वो है जो मुझे मिले, आई थिंक इससे भी ज्यादा। यार मैं वहाँ गई थी तो उधर तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जी। उन्होंने कहा अच्छा इसकी शादी के बारे में जो भी ब्ला ब्ला ये ऐसे बोला, देखो जरा क्या बात करी। मैंने कहा अच्छा उसने कह दिया, तुमने क्या किया? मैंने क्या कहना यार, मैं चुप रही, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा तुम वहाँ तुम्हें मेरी भी खड़ी नहीं आई, तुम्हें वहाँ बोलना चाहिए था दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि तुम तो गवाह थी वहाँ, तुमने मना नहीं किया, तुमने वहाँ नहीं बोला, सुन के आ गई। एग्जैक्टली बात कर रहे थे मेरी शादी के बारे में, बहुत घटिया तो निदा, और हमारे दोस्त से ही होता है कि और अगले को भी पता होना चाहिए कि ये इसकी दोस्त है, तो उसमें हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी बुराई करे। दैट इज अनदर फ्रेंड सादिया गफ्फार, जिसने मेरे बारे में कुछ सुना या कुछ हुआ और उसने शी एक्चुअली स्टूड अप स्टेज पे और लड़ने बहस करने लगी। मुझे पता भी नहीं कि क्या बात हुई क्या नहीं, मुझे तो बोला कि मैं क्या ये दोस्त नहीं होते, और हमें शो पे बताना भी चाहिए आपको, जैसे कौन से दोस्त नहीं उसमें आगे बुराई करने वाला दोस्त, तो सबसे पहले दोस्त नहीं है ये सारे, तो सुन के क्यों आया है ना? तो आप एक वैसे कन्फ्रंट करेंगे अगर पता चलेगा कभी किसी दोस्त ने कहा हो? नहीं, मैं अगेन confrontation again as Nadia said takes a lot of energy and time also, ना टाइम है ना इतनी एनर्जी है, तो आप यू जस्ट नो, हाँ आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस करेंगे।